Subscribe our YouTube channel and watch our videos. بیان دیتا ہے ہمارے علماء بیدار ہو جاتے ہیں اور اس موضوع پر لکھنا شروع کر دیتے ہیں، تقریریں ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ قوم جو ابھی تک کچھ نہیں جانتی تھی وہ بھی بیدار ہو جاتی ہے۔ ہماری قوم کا نقصان نہیں ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، ہمارا اور تو پرچار بڑھ رہا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا آپ سے، مسلمان ہیں اور پھر ہندوستانی مسلمان امن پسند ہے۔ اس نے کہا کیا؟ میں نے اس کی کلپ سنی، وہ کہہ رہا ہے کہ ان آیتوں کے اندر دہشت گردی سکھائی گئی، جہاد بتایا گیا ہے۔ یہ جس کو اسلام کے الف کا پتہ نہیں، دین کے دال کا پتہ نہیں، وہ کیا قرآن کریم کی آیتیں سمجھ رہا ہے۔ اور آج اس نے ایک لمبا چوڑا ویڈیو اپلوڈ کیا ہے، ایک میرے دوست نے میرے پاس بھیجا، 19 منٹ کا، اس میں باقاعدہ بخاری کے حوالے دے رہا ہے۔ بخاری کا بخار اس کمبخت کو بھی چڑھ گیا۔ ابھی یہ بخاری کیا جانے اس کا بخاری سے کیا تعلق ہے؟ اس کمبخت کا بخاری کا با جانتا ہے؟ جس کو بخاری کا نام بھی نہیں پتا، بخاری کا پورا نام کیا ہے، جس کو امام بخاری کے حالات کا تک کا علم نہیں، وہ کہہ رہا میں نے یہ چیزیں بخاری سے لی ہیں۔ اب پتہ نہیں اس کا کون سا بخاری کا بخار چڑھ گیا اسے۔ بہرحال اللہ رب العالمین تمام فتنوں سے اہل ایمان کو محفوظ فرمائے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میں نے جو ابھی آپ سے عرض کیا، مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، نبی کی آن پر آنچ آئے برداشت نہیں کر سکتا۔ انگریزوں کا دور تھا، آپ نے بارہا علماء سے شاید سنا بھی ہو۔ انگریزی دور حکومت میں 1856 کی بات ہے، نہیں بلکہ اس کے بعد کی بات ہے۔ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، حق مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شہید اعظم، کہیں مل جائے پڑھنا، بڑا اچھا اس میں نقشہ کھینچا گیا ہے۔ حضرت نے اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، اور انگریز ایک طرف اگر امن پسند ہونے کا دعویٰ کرتا تھا تو دوسری طرف اسلام مخالف بھی تھا۔ اسی دور میں ایک راجپال تھا جس نے ایک کتاب لکھی تھی زنجیرہ رسول، شاید آپ نے سنی، جس کتاب کے اندر غلاظت بھری تھی، جس کتاب کے اندر امام الانبیاء کو گالی دی گئی تھی، نعوذ باللہ، اما عائشہ کو گالی دی گئی تھی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو گالی دی گئی تھی، صحابہ کرام کو گالی لکھی گئی تھی۔ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اس مرد مجاہد کی قبر اطہر کے اوپر، آمین کہتے۔ پتا چلا جب حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کو پریشان ہو گیا، عطا اللہ بے چین ہو گیا، عطا اللہ دہلی کی جامع مسجد کے اندر آیا اور اپنی پگڑی نکال کر کے قدموں میں ڈال دی۔ لوگوں نے کہا شاہ جی آپ نے پگڑی کیوں اتار دی؟ کہا لوگوں امام الانبیاء کی پگڑی پہلے تلے رو دی جا رہی ہے، عطا اللہ کو حق نہیں ہے پگڑی پہننے۔ حضرت کیا بات ہوئی؟ رونے لگا عطا اللہ، رونے لگا وہ مرد مجاہد، کہا لوگوں ہم ہندوستان میں اتنی کثیر تعداد میں موجود ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، عالم بھی ہیں، محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، مدبر بھی ہیں، لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ کمبخت میرے نبی کو گالی دے رہا ہے، گالیاں لکھ رہا ہے، اما عائشہ کو گالی دے رہا ہے، صحابہ کو گالی دے رہا ہے، ہائے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لاکھوں کا مجمع تھا، کس درد سے کہا ہوگا عطا اللہ شاہ بخاری نے۔ اسی مجمع کے اندر تمام کے تمام رونے لگ گئے، سب کے چہروں کے اوپر سکوت طاری تھا، سارے مجمع میں سناٹا ہے، کوئی اٹھ کر کھڑا نہ ہوا، حالانکہ بڑے بڑے علماء موجود تھے عطا اللہ کے اس مجمع میں، کوئی کھڑا نہ ہوا۔ پیچھے ایک 22-23 سالہ نوجوان کھڑا ہوا تھا، ایک درخان کا بیٹا جس کا باپ بڑھئی کا کام کرتا تھا، چارپائی بنایا کرتا تھا، ونڈو کھڑکیاں بناتا تھا، تخت و دروازے بنایا کرتا تھا، وہ بیٹھا سن رہا تھا۔ نام اس کا علم الدین تھا۔ کیا نام تھا؟ علم الدین۔ 18-20 سال کا نوجوان ہے، حافظ نہیں ہے، عالم نہیں ہے، قاری مفتی نہیں ہے، حاجی نمازی نہیں ہے، چہرے پر داڑھی نہیں ہے، بس جذبہ ایمان اس کے اندر بھرا ہوا ہے۔ نوجوانوں خاص طور سے میں تمہیں سنا رہا ہوں، اس نے سنتا رہا شاہ صاحب کی باتیں، روتا رہا۔ اور ایک چیز اور میں عرض کرتے چلوں، علم الدین کی شادی ٹھیک ہو چکی تھی اور اس کی بارات جانے میں صرف 3 یا 4 دن کا وقفہ باقی تھا۔
अताउल्लाह साहब की रहीमहुल्लाह की मजलिस खत्म हुई, सारे अपने घर को चले गए। हजरत अताउल्लाह साहब बुखारी भी चले गए। ये नौजवान इल्मुद्दीन उठा है, जाकर के अपने घर में पहुंचे। घर में इसका और कोई भाई भी नहीं है और कोई इसकी बहन भी नहीं है। बाप पहले से इंतकाल कर चुका है, बूढ़ी माँ घर में है। बेटे को सुस्त देखा, इल्मुद्दीन की माँ इल्मुद्दीन के करीब आई, बेटा 4 दिन के बाद तेरा निकाह होना है, तेरे घर में एक हसीन सी बहू आएगी, हसीन सी दुल्हन होगी, तेरे सर पर सेहरा सजेगा, तू दुल्हा बन करके जाएगा। बेटा तुझे तो खुश होना चाहिए, तू इतना गमगीन क्यों है, तू इतना उदास क्यों है। इल्मुद्दीन कुछ न बोला, बल्कि वो अपनी माँ के सामने अपने सारे गम को छुपा ले गया। जब माँ दूसरी तरफ चली गई, इल्मुद्दीन चुपके से उठा, उसने एक पूरे तौर पर एक धारदार हथियार उठाया, उसमें धार लगाना शुरू कर दिया। माँ की नजर पड़ गई, माँ ने देख लिया इल्मुद्दीन ये तलवार क्यों तैयार कर रहा है, ये धारदार हथियार क्यों बना रहा है। इल्मुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। इल्मुद्दीन कहने लगा, माँ अगर मसला मेरा होता, मसला आपका होता, मैं बर्दाश्त कर लेता। अगर कमबख्त आपको गाली देता, मैं बर्दाश्त कर लेता। मुझे गाली देता, मैं बर्दाश्त कर लेता। मेरे बाप को गाली देता, मैं बर्दाश्त कर लेता। लेकिन उस कमबख्त ने मेरे रसूल पाक को गाली दी है, उस कमबख्त ने अम्मा आयशा को गाली दी है, उस कमबख्त ने हज़रत फातिमा को गाली दी है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अम्मा मुझे तो दुआएं दे, या तो तेरा बेटा जिंदा रहेगा या उस राजपाल को मौत के घाट उतार दे, तो उतार ही क्या आएगा। अम्मा ने जब सुना, हमारी माए होती कसम देती, जाने ना देती, हाँ उसके पैर पड़ने लग जाती। इल्मुद्दीन की माँ खड़ी हो गई, पेशानी को धोसा दिया और कहने लगे, इल्मुद्दीन मुझे पता था, मैंने तुझे हलाल का दूध पिलाया है, मैंने तेरे बाप के साथ भी जिंदगी में कभी खयानत नहीं की है। बेटा हाँ बेशक तू मेरा एक ही बेटा है, लेकिन रसूल पाक की बात आए और हमारा बेटा घर में मौजूद हो, ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटे जाओ, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है, जाओ चले जाओ, और खबरदार उसे खत्म करके ही वापस आना। ये समझ के वापस मत आ जाना कि माँ बूढ़ी है, इसके बुढ़ापे का कौन सहारा बनेगा, कौन इसको खिलाएगा, कौन इसको पिलाएगा। बेटे गम न करना, वही रब ने पैदा किया है और वही मुझे खिलाएगा भी, वही पिलाएगा भी। जब माँ ने इतना हौसला दिया, गाजी इल्मुद्दीन निकलता है, राजपाल पूरे तौर पर खड़ा हुआ था, बड़ी अदालत में जाकर के सीने में खंजर उतार देता है, उसका काम तमाम करता है, वो तड़प करके मर जाता है। सारे शहर में शोर हो गया, अरे रसूल पाक को गाली देने वाला मार दिया गया, जहन्नम रशीद कर दिया गया, चला गया वो कमबख्त, चला गया लाइन और मलऊन। उलमा का तांता लग गया, अरे कौन है वो खुशनसीब जिसने जन्नत खरीद ली। देखा वो एक दुबला पतला एक नौजवान है, इल्मुद्दीन नौजवान है, चेहरे पर कोई डर नहीं, चेहरे पर कोई उसके पूरे तौर पर शिकम नहीं, आंखों में आंसू जरूर है, लेकिन उस वक्त मसरत के आंसू हैं, ये मोहब्बत के आंसू हैं, रसूल पाक के इश्क के आंसू हैं। पढ़े हैं आगे हुसैन अहमद मदनी, पढ़े हैं आगे किफायतुल्लाह दहलवी, पढ़े हैं आगे सैयद अताउल्लाह साहब बुखारी। पेशानी को चूमा, और हाँ मुसलमानों नौजवानों, गाजी इल्मुद्दीन ने उसको मारने के बाद वहां से राह फरार अख्तियार नहीं की, बल्कि गिरफ्तारी दे दी। गाजी इल्मुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया, अंग्रेज अदालत में पेश किया गया, अंग्रेज अदालत ने फांसी का ऑर्डर पास कर दिया। पता चला उस वक्त का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैरिस्टर, सबसे बड़ा वकील, सबसे बड़ा माहिर कानून दुनिया जिसको कायदे आदम मोहम्मद अली जिन्ना कहती है, उनको पता चला, वो भागे भागे चले आए, कहेंगे इल्मुद्दीन जब जज अदालत में तुमको पेश किया जाएगा, जज तुमसे पूछे इल्मुद्दीन को तुमने कत्ल किया है, कत्ल से इनकार कर देना तेरा काम है, फांसी से बचा लेना मेरा काम है। जब ये बात कही मोहम्मद अली जिन्ना ने, इल्मुद्दीन रोने लग गया, रोने लग गया, आंखों में आंसू आए, कहने लगे वकील साहब, बैरिस्टर साहब, जिंदगी में नमाजें मैंने नहीं पढ़ी, जिंदगी में रोजा मैं नहीं रख पाया, जिंदगी में हज मैं नहीं कर पाया, कोई नेक काम मैं नहीं कर पाया, एक ही नेकी की है उससे भी कहते हो इनकार कर दो। हाय हाय, कैसा नौजवान होगा, जिंदगी में उस कमबख्त लईन मलऊन को मार कर एक ही नेकी की है और उससे भी कहते हो इनकार कर। हजरत मैं इनकार नहीं करूंगा।
जेल में डाल दिया गया। चंद रोज के बाद फांसी होगी है। इल्मुद्दीन की माँ को पता चला तेरे बेटे को फांसी दी जाएगी। सजदे शुक्र अदा किया, मुसल्ला बिछाया। हमारी माएँ होती खाना पीना छोड़ देती, पता नहीं क्या क्या करती। इल्मुद्दीन की माँ सजदे शुक्र अदा कर रही है, अल्लाह से दुआ कर रही है, ऐ रब्बुल जलाल, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन तूने मेरे बेटे को जो हिम्मत और जो जुर्रत अता फरमाई है, इसको उसकी मौत तक सलामत रखना। कहीं मौत के डर से इल्मुद्दीन बयान बदल न दे। ऐ अल्लाह तो उसकी हिफाजत है। माँ दुआ कर रही है। बहरहाल जब फांसी का दिन आया, मिलने के लिए बड़े बड़े उलमा आ रहे हैं। अताउल्लाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि जब जेल पहुंचे तो जेलर जो था, जो गार्ड था, बैठा हुआ था कि लगा शाह जी आप मुलाकात इससे बाद में करना, एक राज की बात इससे जरूर पूछना। कहा वो क्या है? कहा जिस दिन से ये काल कोठरी में डाला गया है उस दिन से इतना, वैसे तो बड़ा अंधेरा होता था लेकिन हर रात इतना उजाला होता है आधी रात के बाद कि इसकी सारी की सारी कोठरी में रोशनी ही रोशनी होती है। पूछना तो सही, टॉर्च कहाँ से लाता है, लाइट कहाँ से लाता है, ये राड कहाँ से जलते हैं? अताउल्लाह साहब बुखारी रहिमहुल्लाह इल्मुद्दीन से मुलाकात के लिए गए हैं, पेशानी को चूमा, चूमने के बाद कहे इल्मुद्दीन मना नहीं करना, कसम है तुझे मेरे नाना जान की, बता तो सही रात के अंदर तेरे कोठरी में नूर कहाँ से आता है? इल्मुद्दीन रोने लग गया। कहा शाह जी अगर कोई और पूछता मैं हरगिज़ न बताता, लेकिन मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये काल कोठरी मुझे अच्छी लगने लगी है। जिस दिन से मैं इसमें आया हूं उस दिन से रोजाना मेरे नबी पाक अपने चारों खुलफा के साथ मुलाकात के लिए तशरीफ लाते हैं। सुभान, रोजाना तशरीफ लाते हैं। अभी 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 सुबह अम्मा आयशा तशरीफ लाई थी और कह गई है बेटा इल्मुद्दीन अभी तो थोड़ी देर के बाद मेरी गोद में सोने वाला है। अताउल्लाह रोने लगा, काश इसकी जगह मैं होता, काश इसकी जगह मैं होता। बहरहाल बड़े मैदान में फांसी का इंतजाम किया गया। इल्मुद्दीन को फांसी के तख्ते के करीब लाया गया। बूढ़ी माँ मैदान में आई, वो माँ जो अपने इसी इल्मुद्दीन के सर के ऊपर दूल्हे का सेहरा देखने वाली थी, वही आज इल्मुद्दीन का सर फांसी के फंदे पर लटकने देखने आई है। मुसल्ला बिछा लिया मैदान में, दुआएं मांगने लगी, अल्लाह मेरे बेटे को साबित कदम रखना, मौत के डर से कहीं ये भाग न जाए, कहीं ईमान से फिर न जाए, हाँ कहीं ये मुकर न जाए। बड़े लालच दिए जा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो इसको साबित कदम रखना। माँ उधर दुआएं कर रही है, सारे उलमा की आंखें अश्कबार हैं। वो कैसा नौजवान होगा, हाँ हाँ जिसको देख करके वक्त का वली कामिल रोता हो, जिसको देख कर किफायतुल्लाह दहलवी आंसू बहाता हो, जिसको देख कर हुसैन अहमद मदनी रोता हो, जिसको देख कर सैयद अहमद बरेलवी रोता हो, जिसको देख कर मौलाना अबुल कलाम आजाद भी अशश कह उठता हो, वो नौजवान कितने मुकद्दर वाला हो। इल्मुद्दीन फांसी के तख्ते पर आया और आकर के सारे मजमे को यूं एक नजर देखा। देखने के बाद सारे मजमे को पुकारा कि मुझे आए मजमे, आए लोगों तुम इसको फांसी का फंदा समझते हो, मैं तो इसको महबूब से मिलने का दरवाजा समझता हूँ। इधर इसके अंदर से मैं दाखिल होकर सीधे रसूल पाक के दरबार में पहुंच जाऊंगा। आए लोगों तुम गवाह रहना, मैं मेरी मौत फितरत इस्लाम पर आ रही है। इसके बाद कलमा पड़ा है बुलंद आवाज से, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जन्नातों का सहारा नहीं लिया, खुद अपने हाथों से फांसी के फंदे को अपने गले में डाला और जाकर के फिर तो पर जामे शहादत को नोश कर लिया। सारे के सारे लोगों ने बड़ी बेहुरमती की, लाश को फिर तो पर उतारा गया। कम वक्तों ने और उस राजपाल के साथियों ने इल्मुद्दीन का सर काटा। माँ जो दुआएं मांग रही थी दामन फैलाए हुए, हाँ हाँ उस सर को, इल्मुद्दीन के कटे हुए सर को पूरी माँ की तरफ फेंका है। बूढ़ी माँ के झोली में इल्मुद्दीन बेटे का कटा हुआ सर जाता है। माँ अपने बेटे का सर पकड़ करके ये दूर फेंकती है। कहा है लोगों मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूँ, मैं अपने बेटे को अल्लाह को दे चुकी हूँ और मैं देकर वापस नहीं लिया करती। सुभान अल्लाह। कल देखा है उधर देखा, अब तो इससे कयामत के दिन ही मुलाकात करूंगी। मुसलमानों ऐसे भी नौजवान दुनिया में अभी कितने दिन हुए हैं, आज भी ऐसे नौजवानों से दुनिया खाली नहीं है। मेरी माँ तुम भी इल्मुद्दीन की माँ जैसा जज्बा पैदा करो। जब माएँ नेक होती
ہیں تو بیٹے جب مائیں نیک ہوتے ہیں